Hi students, good morning once again, and let's complete the chapter without wasting time because today it's going to be a 3 lecture for you. One on matrices, another on chemistry, and the third one on physics, that is on potential and Gauss's theorem. So let's see. So let us take again a numerical of 3 cross 3 and let's try and solve it. Now this will be the last question altogether, so it's going to be a very small video. But in this video itself, I am also going to include a topic of determinants, जो कि केवल CBSE के स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है, नॉट द स्टेट को. ओके, नाउ सो मैट्रिसेस, बट ये जो टॉपिक है ये दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज द CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स. सो मैट्रिसेस में लेट्स सी. सो आई हैव गॉट दिस पर्टिकुलर से ले लेता हूँ. यहाँ पर मैंने ले लिया, मान लो 3 7 0 1 2 5 minus 1 0 and 2. This is a matrix A. Okay, so how will we write for the part of inverse that A should be equals to I into A? So let's write this. So it should be equals to I means identity matrix, which is 1 0 0 0 1 0 0 0 1, okay, into A. Now let's start doing the row column elementary transformation. आप कुछ भी लगा सकते हो. Normally I prefer row. It becomes much more easier to see. So let's see. मुझे first वाले part को क्या करना है? That is 1 लेकर के आना है. यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है. So let's do R1 interchanged by, मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0. So R1 interchanged by R1. 3 minus 2 करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा. तो R1 minus 2 R2. R1 minus 2 R2. Let's see अब की बार क्या आएगा. तो यहाँ पर आएगा 3 minus 2 is 1. 7 minus 4 comes out as 3. 0 minus 10 comes out as minus 10. 1 minus 1 as it is, 2 as it is, 0 as it is, 5 as it is, and 2 as it is also. It should be equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1. Now I have got 1 over here. Now what I need to do is I need to get 0 and 0 over here. So क्या करूँगा? R2 interchanged by, जो यहाँ पर लिखा है वही वहाँ पर लिखना, R2 minus R1. 1 minus 1 0 आ जाएगा. Also another operation, R3 interchanged by minus 1 plus 1. So R3 plus R1. Let's see. तो पहले मैंने R1 को चेंज नहीं किया, तो 1 3 minus 10. Don't you think we are missing something over here? अपन ने यहाँ पर एक ऑपरेशन ही लगाया. So R1 minus 2 R2 है, तो बाकी दोनों तो सेम रहेंगे. तो 1 minus 2 into 0 will be 1. Then 0 minus 2. Okay, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? That is minus 2. And then 0 minus 2 into 0 will be 0. So just one thing change. Okay, now R2 minus R1. So 1 minus 1 will be 0. Minus 1 plus 1 will be 0. Then यहाँ पर था R2 minus R1. 2 minus 3 is minus 1. 0 plus 3 will be 3. Then 5 minus minus 10. 5 minus minus 10 will be 5 plus 10. 15. 2 minus 10 will be minus 8. 2 minus 10 क्योंकि R3 plus R1 करना था. Let's see. मुझे once again I don't need to change now R1. तो मैंने 1 minus 2 0 को as it is रखा. Then R2 minus R1. 0 minus 1 is minus 1. 1 minus minus 2 comes out as 3. 0 minus 0 is 0. 0 plus 1 comes out as 1. 0 minus 2 comes out as minus 2, and 1 minus 0 or 1 plus 0 is 1. So that's all. Now what do we need to do? यहाँ पर 1 0 0 आ चुका है. अब मुझे क्या करना है? मुझे इस जगह पर 1 चाहिए. इस जगह पर 1 करने के लिए क्या करूँगा? ये यहाँ पर minus 1 है, तो R2 interchanged by minus R2. R2 interchanged by minus R2. So let's see this. So ये हो जाएगा 1 3 minus 10. यहाँ पर हो चुका है 0 1 minus 15.
यहाँ पर हो चुका है 0 3 माइनस 8, देन इट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अगेन 1 माइनस 2 0, देन यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 0, साइन चेंज, देन 1 माइनस 2 1, ये हो गया मेरे पास में 1 0 0, मेरे पास में यहाँ पर भी 1 आ चुका। अब क्या करना है, इस जगह पर और इस जगह पर 0 लेकर के आना है। सो वेरी सिंपल, R1 इंटरचेंज्ड बाय R1 माइनस 3R2, क्यों R1 माइनस 3R2, एंड देन R3 इंटरचेंज्ड बाय R3 माइनस 3R2, क्यों, देखो यहाँ पर 3 है, 3 minus 3 will be 0, 3 minus 3 will be 0. So let's do this. So I'm doing this operation right over here. Okay, so मैंने केवल R1 और R3 को चेंज किया है, तो R2 को बीच में एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 एंड माइनस 15। देखते हैं फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, R1 माइनस 3R2, तो 1 माइनस 3 इंटू 0, तो कॉमन सेंस है ये वाला पार्ट 1 ही रहेगा आपके पास में। देन कम्स 3 माइनस 3 विल बिकम 0, देन कम्स माइनस 10 एंड देन माइनस 3 इंटू माइनस 15, तो माइनस 3 इंटू माइनस 15 विल बिकम प्लस 45, तो 45 माइनस 10 वुड बिकम व्हाट, 45 माइनस 10 विल बिकम 35, करेक्ट। देन नीचे वाला पार्ट में R3 माइनस 3R2, 0 माइनस 0 विल बी 0, then comes 3 minus 3 will be 0, then comes minus 8, minus into minus will become plus, so it will become what, that is 45, correct। So minus 8 plus 45, minus 8 plus 45, what do you think? So minus 8 plus 45 means 45 minus 8, so 45 minus 5 is 40, minus 3 is 37, ये भी हो गया आपके पास में। ओके, अब इट शुड बी इक्वल्स टू, एज यूजुअल मिडिल टर्म को मैंने सेम का सेम रख दिया है यहाँ पर, सो इट इज 1 माइनस 3 एंड देन 0। अब R1 माइनस 3R2, 1 माइनस 3, सो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, देन कम्स माइनस 2 एंड प्लस 9, माइनस 2 प्लस 9, 9 minus 2 will be 7. Then comes 0 minus 3 into 0 will be 0. Then 1 minus 3, 1 minus 3 is minus 2. Then comes minus 2 plus 9, minus 2 plus 9, 9 minus 2 comes out as 7. Then comes 1 minus 3 into 0 will be 1. So I have got 1 0 0 0 1 0. अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए 1 और यहाँ तो पर 0 0, तो पहले इसको 1 लेकर के आते हैं। सो R1, ओके सॉरी R3 इंटरचेंज्ड बाय 1 बाय 37 R3, जो भी चीज दिखाई दे रही है मैं उसी को बस मैं कॉमन बाहर निकाल रहा हूँ। ओके, कॉमन मतलब मैंने 37 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो दिस विल कम आउट एज 1 0 35, then comes 0 1 minus 15, then comes 0, then comes 0, then comes 0 and then comes 1. It should be equals to, यहाँ पर आ जाएगा -2 बाय, ये तो -2 ही रहेगा, 7 0, यहाँ पर आएगा 1 by 37, सॉरी यहाँ पर no change आएगा। Why? Because this particular row is not going to be changed. So this is 1 minus 3 and then 0, यहाँ पर आएगा -2 by 37, इधर पर आएगा 7 by 37 और यहाँ पर आएगा 1 by 37 and that's all। अब क्या करोगे, द लास्ट टू पार्ट, आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या चाहिए, 0 and 0। सो लेट्स अप्लाई वही घिसा पिटा इक्वेशन, R1 इंटरचेंज्ड बाय, R1 की जगह तो R1 ही लिखना पड़ेगा, 35 यहाँ पर 1 है तो मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा और इससे माइनस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। सो R1 माइनस 35 R3, और एक और ऑपरेशन लगा देता हूँ, R2 इंटरचेंज्ड बाय R2 प्लस 15 R3, प्लस 15 क्यों किया इस बार, यहाँ पर पहले से -15 था, -15 प्लस 15 will give you what, 0। So let's move on to this। ओके, कॉमन सेंस मैंने R1 और R2 को चेंज करा हुआ है,
तो यहाँ पर -2/37 विल रिमेन द सेम, यहाँ पर 7/37 विल रिमेन द सेम, यहाँ पर 1/37 विल ऑल्सो रिमेन द सेम। यहाँ पर मूव करते हैं तो R1 - 35 R3, 1 - 0 कॉमन सेंस है, यहाँ वाला पार्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब अंडरस्टैंड द शॉर्टकट्स नाउ। अब जब भी कोई ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉमन सेंस है ये वाला साइड तो चेंज आपके हिसाब से ही हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया क्यों नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने हिसाब से ही रो लगाया था, तो यू कैन राइट डायरेक्टली। ऐसे ही हर एक स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको मालूम ही है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा, सो यू कैन राइट इट। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं इस वाले पे। सो -2 एंड देन -35 इंटू R3, सो -2, तो यहाँ पर मेरे पास में लिखा है -2, एंड इट्स बेटर जब भी कभी इतनी गंदी कैलकुलेशंस हो तो वेरी सिंपल, -2 आपने सेम लिखा, देन -35 इंटू व्हाट इज R3, दैट इज -2/37, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 70/37, 37 2 is 74, तो 74 -74 प्लस 70 इज -4/37, तो यहाँ पर आ जाएगा -4/37। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। R1 -35 R3 था, तो 7 वापस से इधर पे लिख रहा हूं, सो इट इज गोइंग टू बी 7, देन -35, सो 7 -35 और क्या था R3, R3 में कितना है 7/37। नाउ यहाँ पर सबसे पहले उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सर ये तो कर ही लेंगे। हाँ, रफ वर्क में प्रॉपर्ली सॉल्व करो एंड तभी जा करके आंसर आता है, अदरवाइज हमेशा गलत आंसर आएगा। सो 37 इंटू 7 करता हूँ, तो 37 इंटू 7, 7 7 are 49, 9 carry 4, so 21 and 4 25, so it comes out as 259. Then comes 35 into 7 करते हैं, तो 35 into 7, 35 5 3 21 and 3 24, 245, 259 minus 245/37, तो कितना आ जाएगा 59 minus 45 करूंगा तो आ जाएगा 14, तो यहाँ पर आएगा 14/37, तो ये आ गया 14/37। Then comes 0 minus 35/37, तो 0 ये तो सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -35/37। अब चाहिए मुझे कौन सा सेकंड वाला रो, व्हाट इज द सेकंड रो, R2 plus 15 R3, 1 15 into -2 comes out as what, -30, तो 1 -30/37, 1 -30/37, 37 minus 30 7/37, तो यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह बची नहीं है तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सो इट शुड बी 7/37। ओके, देन कम्स -3 and plus 15, 15 6 is 90, 15 7 is 105, so -3 plus 105/37, -3 plus 105/37, so 37, 3 7 is 21, 1 2, then 9 and 2 11, minus 111 plus 105/37, so it is going to be -6/37, right? So ये आ गया -6/37। अब बोलोगे मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, बीच में जगह नहीं बची है, ड्यू टू माय ब्यूटीफुल राइटिंग। खैर, सो यहाँ पर आ जाएगा -35/37, तो अब की बार यहाँ पर कितना बचा था 0 एंड प्लस 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/37, तो 0 प्लस 15/37 इज ऑलवेज गोइंग टू बी 15/37। सो आप चाहो तो 1/37 बाहर कॉमन भी निकाल सकते हो, सो इफ यू विल टेक आउट 1/37 कॉमन आउटसाइड, तो क्या बचेगा -4, यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा -35, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ बचेगा -6, यहाँ बचेगा 15, यहाँ पर बचेगा -2, यहाँ पर बचेगा 7 एंड यहाँ पर बचेगा 1। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं करना है गाइस, बस केवल 1 आ गया मतलब अब तो आपको भगवान मिल गया, आप कोई नहीं हरा सकता आपको, इट इज दैट सिंपल। ओके, नाउ let's shift the focus all from the part of the matrices right on to matrices का एक last line के ऊपर में। Now this is very important both for the part of the state as well as for the CBSE।
नाउ प्लीज रिमेंबर, मैट्राइज के अंदर जब भी आपको कभी भी कोई एक चीज कॉमन बाहर निकालनी होती है तो वो हर एक में से कॉमन निकलती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ मैट्रिक्स लाइक दिस और यहाँ पर एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज, यदि मान लो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड मैट्रिक्स, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18. प्लीज डू नॉट गेट मिस्टेकन विद दिस पार्ट कि किसी भी एक रो या एक कॉलम को कर दोगे. ध्यान रखना, सबसे होगा, केवल किस में? मैट्रिक्स के अंदर. ओके, let's now shift our focus all from the part of matrices and let's move on to the word determinants. Now state boards या जिन भी boards के अंदर determinants वाला part अभी नहीं है तो वो लोग मत देखना. क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज ये पूरा का पूरा लेक्चर देखना, बिकॉज डिटर्मिनेंट्स भी है और मैट्राइसेस भी है आपके इसमें. ओके, नाउ लेट्स मूव आवर फोकस ऑल फ्रॉम द पार्ट ऑफ मैट्राइसेस से शिफ्ट करके डिटर्मिनेंट्स पर आता है. गाइस नाउ सीबीएसई के अंदर डिटर्मिनेंट्स एक अलग से टॉपिक है और इसका मतलब है कि ये आपको बाय डिफॉल्ट एक बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाला है. आप बोलोगे एडवांटेज कैसे? सी, अभी तक स्कूल्स खुले नहीं हैं, अभी तक अपना केवल एक ही चैप्टर हुआ है विच इज डिफरेंशिएशन, बट टेक्निकली विच वाज द बिगेस्ट वन. होपफुली यदि आपने अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है तो, एंड द स्टेट बोर्ड्स, यदि आपने क्लास 11th के स्टेट बोर्ड्स के डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट या डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12 कंप्लीट कर लिया, इट्स वेरी गुड. फॉर रेस्ट आई एम अगेन टेलिंग यू गाइज, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग जितना पीछे चल रहे हैं हम उन सबसे आगे निकल जाएंगे. वाई? बिकॉज इस मंथ के एंड होने के पहले आपका चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा, आपका चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस हो चुका है, एंड डिफरेंशिएशन. इसका मतलब आई विल शो यू प्रैक्टिकली आर.डी. शर्मा का पूरा एक वॉल्यूम खत्म हो जाएगा इसी महीने में. बट द ओनली थिंग इज इफ यू आर सीइंग द वीडियोस, इफ नॉट देन गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स. सर लेकिन आप डिटर्मिनेंट्स क्यों ले रहे हो अभी? इसलिए बिकॉज मैट्राइसेस के बाद में डिटर्मिनेंट्स बताना इज लाइक अ पीस ऑफ केक. इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि आपने ऑलरेडी आता है डिटर्मिनेंट्स करना. अब डिटर्मिनेंट्स में होगा क्या क्या? फर्स्ट पार्ट होगा ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, सेकेंड पार्ट होगा आपके पास में द कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, कोफैक्टर्स, माइनर्स, then comes the words transpose, then comes the words adjoint of the determinant, and the last part would be the properties of the determinant. And then most important part is how to solve determinant. Now what do you mean by this particular word? That so first of all let's start from this. और मैं आपको दोबारा से ये नहीं बताने वाला हूँ because this is already being completed in the previous video. So if you can see, then you can watch back and go to the part of the playlist. And playlist पे जाने के बाद में type और by the way search for the part of class 12th mathematics and उसमें आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा पूरा मैट्राइसेस के अंदर. So order हो चुका ऑलरेडी, कोफैक्टर्स हो गया ऑलरेडी. कोफैक्टर्स में केवल साइंस आते हैं प्लस या माइनस, माइनर्स सेम वैल्यू विदाउट साइन. ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में चेंज कर देना. एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर्स की जो भी आप मैट्रिक्स बनाते हो उसका ट्रांसपोज कर दो और उसका अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. दैट्स ऑल. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द वर्ड प्रॉपर्टीज एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड डिटर्मिनेंट. अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स किया हुआ है ना. आप सब लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे. इनवर्स का क्वेश्चन आप स्टॉप वॉच लगा करके बैठ जाना, आप ही की टेक्स्ट बुक में से कोई भी क्वेश्चन उठाना, बट इट शुड नॉट बी ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. एंड इफ यू कैन सॉल्व इनवर्स क्वेश्चन इन लेस देन 9 मिनट्स, यदि आप 9 मिनट से कम टाइम के अंदर मैट्रिक्स का इनवर्स का क्वेश्चन बाय रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो, ट्रस्ट में आपका लेवल बढ़ चुका है. बट ध्यान रखना गेम यहाँ पर खत्म नहीं होता. जब आपका वो काम खत्म हो जाएगा तो मेक श्योर दैट यू गो टू द एंड ऑफ द पेजेस ऑफ योर एनसीईआरटी और योर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स एंड आप उसमें जरा आंसर चेक कर लेना.
यदि आपका आंसर सेम आ रहा है जिसके आने के चांसेस 0/0 हैं पहली बार में, यदि आ गया ट्रस्ट मी यू आर जीनियस। बट नॉर्मली मैंने बहुत ही फ्यू स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका आंसर आता है बिकॉज वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट को आमतौर पे हम हमेशा पैरेलल लाइन से शो करते हैं, वाइल मैट्रिक्स को हम हमेशा ऐसे में शो कर रहे थे। सो डिटर्मिनेंट को कभी भी ऐसे मत शो करना, ऐसे में शो करना। ओके, सो नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, सपोज कर लो मेरे पास में एनी रो और कॉलम, मैं जब भी कभी रो बोलूंगा इसका मतलब कॉलम पे ही है। इफ एनी रो और कॉलम इज इक्वल then the answer of the determinant will always be 0. Suppose कर लो मेरे पास में है 1 2 3 1 2 3 6 7 8। पहली प्रॉपर्टी ये होती है if any row or column, if any row or column is equal, then determinant will always be equals to 0. मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है गाइस। नाउ बट सर आपने बोल दिया, हम कैसे माने? लेट्स चेक। अपन ऐसे ही डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते थे, तो लेट्स एक्सपैंड द पार्ट 1 प्लस माइनस प्लस 1 perpendicular friends गए, this into this minus this into this, 16 minus 21, 16 minus 21 is minus 5, then minus 1 bracket, perpendicular friends gone, 2 into 8 is 16 minus 3 into 7 comes out as 21 plus plus minus plus, ये क्यों आ रहा है साइन प्लस माइनस प्लस का? बिकॉज कोफैक्टर्स याद करो, C11 पे इवन होता है, C12 पे ऑड आता है, C13 पे इवन होता है, -1 to the power plus 6 bracket, perpendicular friends gone, 2 into 3 is 6, 6 minus 6 will be 0. So let's check, -5, then comes 16 minus 21 is -5 into -1 is +5 plus 0. So answer is what? 0. आ गया 0। सर आप हमेशा रो से क्यों करते हो? क्योंकि आपको इजी लगता है। लेट्स नाउ ट्राई रैंडमली सो दैट ये आपको सेकंड प्रॉपर्टी बता देगा। आप कहीं से भी एक्सपैंड करो, आंसर सेम ही आता है। लेट्स ट्राई एंड एक्सपैंड फ्रॉम expanding along C1. What is C1? मैं आपकी बार यहां से एक्सपैंड करूंगा, तो साइन ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर साइन कौन से आएंगे? प्लस माइनस प्लस। ओके, नाउ लेट्स सी। तो मैंने यहां पर लिया 1, अब की बार मैं ऐसे एक्सपैंड कर रहा हूं। सो 1, तो 1 को जब लूंगा तो परपेंडिकुलर फ्रेंड्स इसके गए, सो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 16 minus 21 is -5, -2 perpendicular friends गए, this one gone, so 8 minus 24, 8 minus 24 is -8 minus 24 कितना होता है? और 24 minus 8 should have been 16, so -16, then plus 3, expanding along this, so perpendicular friends gone, so this into this 7 minus 12, 7 minus 12, 7 minus 12 is -5. Let's check. -5 plus 32 minus 15. -5 plus 32 and -15. So -15 -5 is -20 plus 32. So मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया, इसका मतलब let's check once again. Expanding along C1. So मैंने यहाँ पर C1 के along expand किया. So plus minus plus minus plus minus plus minus plus, so it is 1 bracket, perpendicular friends gone, 16 minus 21 is -5, then comes -2, perpendicular friends gone, okay, so it will be 8 minus 8 minus 18 होना चाहिए था, so 8 minus 18 would be -10,
Okay, and then plus 3, so this was gone, that is 7 minus 12. 7 minus 12 is minus 5. Let's check once again. Minus 5 plus 20 and minus 15. So minus 5, minus 15 and plus 20 cancels out. Answer is 0. So that means that whichever way you are going to solve, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप C1 से एक्सपैंड करो, आप चाहो तो C2 से भी एक्सपैंड कर सकते हो, आंसर तब भी 0 आएगा. So I'm just going to show it to you with the help of C2 and let's check. Expanding along C2. Now what is this C2? So let's see. Okay. मैंने C2 से एक्सपैंड किया तो C2 ये है, साइंस ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो यहाँ माइनस प्लस माइनस है, सो माइनस 1, perpendicular friends gone, so this is going to be 16 minus 21. 16 minus 21 is minus 5, then plus 2 bracket, perpendicular friends gone, right? 8 minus 18, 8 minus 18 is minus 10, then plus, sorry, minus 3, perpendicular friends gone, so it will be 7 minus 12, 7 minus 12 would be minus 5, so it is going to be 5 minus 20 plus 15, 15 plus 5, 20 minus 20, 0. So now let's come back to the property number 1. If any row or any column is equal, कोई भी दो rows, okay, so यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, if any two rows or column is equal or are equal, then the determinant is always equal to 0. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर C1 और C2 equal है, तो जब भी एग्जाम में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? Since C1 is identical to C2 or since C1 is similar to C2, hence determinant is 0 by property number 1. Okay? और यदि यही मान लो आपको ऐसे दिया होता 1 2 3 1 2 3 6 7 8, तब भी आंसर 0 ही आता. Why? Because R1 and R3 are same, so answer 0. So कैसे भी कर लो, यदि दोनों के दोनों मैट्राइसेस के अंदर, यदि सपोज कर लो आपके पास में ये पार्ट इक्वल आ रहा है, 0, अब वो कॉलम में आ रहा हो, रो में आ रहा हो, बीच में कुछ भी हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही आएगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 2. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2 सेज? Property number 2 is once again the same part, that is if any particular determinant, suppose कर लो मैंने यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. If any row or column is interchanged, then माइनस साइन या प्लस साइन का डिफरेंस आता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सपोज करो ये है R1, ये है R2, मैंने यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया R1 इंटरचेंज्ड बाय R2. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब जहां पर भी R1 के एलिमेंट्स हैं उसकी जगह R2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जहां पर R2 के एलिमेंट्स हैं वहां R1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे. सो दिस डिटर्मिनेंट वुड बिकम नाउ व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देख रहे हो, पोजीशंस आर चेंजिंग, पोजीशंस आर चेंजिंग. अब जब भी कभी ऐसा वाला पार्ट होता है तो इसके आगे बस केवल माइनस साइन का अंतर पड़ता है. इसका मतलब है यदि आप एक बार ऑपरेशन करोगे तो माइनस साइन का अंतर आएगा. अब यदि आपने इसी को दोबारा से मान लो ऐसे करा, R2 इंटरचेंज्ड बाय R3, so it will become something like this, 4 5 6, then यहाँ पर आएगा 7 8 9 1 2 and 3. सो ये जो माइनस साइन था, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस. दैट्स ऑल.
सो इसका मतलब है जितनी बार भी आप रो को या कॉलम को, और ये जरूरी नहीं है मैं जब आर लिख रहा हूं तो आर ही है, आप चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है कैसे, सपोज C1 इंटरचेंज्ड बाय C2, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा 5 8 2 4 7 1 6 9 3 माइनस साइन। जब भी कभी एक पोजीशन चेंज करोगे प्लस या माइनस साइन याद से लगा देना। ओके, सो वी विल स्टॉप ऑन टू द पार्ट ऑफ टू प्रॉपर्टीज ओवर हियर। होपफुली कल, आई गेस कल तो नहीं बट आई थिंक परसों शायद ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा डिटर्मिनेंट, देन वी वुड बी कंप्लीटिंग आइडियली 3 चैप्टर्स। टेक्निकली इस महीने में चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी आर.डी. शर्मा से फर्स्ट बुक पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट आपकी खुद की जो फर्स्ट बुक है वो भी खत्म हो जाएगी। ओके, सी यू गाइस, एंजॉय, बाय बाय।